Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture on DC to DC converters. The topic is Introduction to DC converters Part 2. Control of output voltage in DC to DC converters. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक बक कन्वर्टर डेवलप किया था और बक कन्वर्टर के लिए ये रिलेशन भी डिराइव किया था V naught equals to dVn. V naught is the converter's output voltage, D is the duty cycle, and Vn is the source voltage. For a fixed value of this source voltage, this V naught is directly proportional to the duty cycle D. If we change the duty cycle, correspondingly the value of the output voltage will also change. So this output voltage can be varied linearly with the duty cycle. This is shown in this figure. On x-axis we have plotted the duty cycle, while on the y-axis we have plotted the output voltage V naught. In this table, this is D and this is the output voltage V naught. अगर हम D की different values लेंगे, for example if D equals to 0, output voltage will be equals to 0. इसी तरह जो D की maximum value हमारे पास है, this is 1, the output voltage will be equals to the input voltage. इस तरह 0 और 1 के दरमियान हम D की मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी. लेकिन जिस तरह डी की लिए रेंज हमारे पास फ्रॉम 0 to 1 है, इस तरह आउटपुट वोल्टेज के लिए बक कन्वर्टर के केस में जो रेंज है वो फ्रॉम 0 to Pin है. और इस टेबल से ये जो फिगर गिवन है जिसमें हमने V naught को विद रिस्पेक्ट टू D प्लॉट किया है, ये ग्राफ हासिल कर सकते हैं. सो D की वैल्यू चेंज करने से या रेगुलेट करने से हमारे पास V naught की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी, यानी हम D को रेगुलेट कर सकते हैं. Normally feedback systems are constructed that adjust the duty cycle to regulate the converter's output voltage. These feedback systems apply a control signal at the gate terminal of the control switch, making them turn on and off. Two methods are used for the generation of these control pulses to control the output voltage of a DC to DC converter. The first one is the pulse frequency modulation and the second one is the pulse width modulation. In the pulse frequency modulation method, the width of the pulse, that is T on, is kept constant while the time period is varied. This figure shows how the output voltage reduces as the frequency is decreased. This line, this dotted line, this is the output voltage, the average value of the output voltage. Similarly for this graph, this is the average value of the output voltage. This is the pulse width T on and this is the time period. So इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि सब के लिए जो टी ऑन है वो कांस्टेंट है. इस ग्राफ के लिए टाइम पीरियड हमारे पास ये है. सेकंड जो हमारे पास ग्राफ या वेवफॉर्म है उसके लिए टाइम पीरियड ये है. थर्ड केस में हमारे पास ये टाइम पीरियड है, जबकि फोर्थ में हमारे पास ये टाइम पीरियड है. जैसे जैसे हम टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम कर रहे हैं. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम करने से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है वो कम हो रही है. The next method is the pulse width modulation. In this method, the pulse width T on is varied while the switching time period is kept constant. Figure shows how the output voltage is varied as the D is increased. All these graphs or all these waveforms have been plotted using the relation V naught equals to dVn. V naught is the output voltage, D is the duty cycle and Vn is the converter input or source voltage. इस फिगर में हमारे पास तीन डिफरेंट वेवफॉर्म्स है. ठीक, वाई एक्सिस पे हमने आउटपुट वोल्टेज V naught को प्लॉट किया है.
और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। दिस इज द इनपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर। तीनों केसेस में हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है वो फिक्स है, लेकिन डी की वैल्यू हर एक वेवफॉर्म के लिए डिफरेंट है। ये जो वेवफॉर्म है दिस इज़ फॉर ए लार्जर वैल्यू ऑफ डी। ये जो सेकंड वेवफॉर्म हमारे पास है आउटपुट वोल्टेज के लिए, दिस इज़ फॉर ए मीडियम वैल्यू ऑफ डी, एंड द थर्ड वन इज़ फॉर ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ डी। सबसे ज़्यादा वैल्यू डी के इस केस में है। अगर डी की वैल्यू ज़्यादा होगी, चूँकि टाइम पीरियड हमारे पास कांस्टेंट है, तो डी की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है टी ऑन की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टी ऑफ। ठीक है, मीडियम डी के केस में टी ऑन की वैल्यू इस वेवफॉर्म के मुकाबले में कंपेरेटिवली यहाँ पे कम है, जबकि टी ऑफ की वैल्यू कंपेरेटिवली ज़्यादा है। और इस तरह थर्ड वेवफॉर्म में हमारे पास चूँकि दिस इज़ फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ टी, इस वजह से टी ऑन की वैल्यू ये जो वैल्यू है ये सबसे कम है और टी ऑफ की वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा है। तो अगर डी की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो करस्पॉन्डिंगली कन्वर्टर की जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी। अब अगर इन तीनों वेवफॉर्म्स को हम कंपेयर करना चाहें तो फॉर ए लार्जर वैल्यू ऑफ टी वी नॉट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और सबसे कम वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की हमारे पास फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ डी है। द स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने एक बक कन्वर्टर डेवलप किया था और उस बक कन्वर्टर में रिपल्स रिमूव करने के लिए हमने एक एलसी फिल्टर यूज़ किया था। उस एलसी फिल्टर का पर्पस क्या था? We used this LC filter in the buck converter to allow the DC component to pass and completely removes the components at the switching frequency and at harmonics। लेकिन ये हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा एलसी फिल्टर डिज़ाइन कर ले या बिल्ड कर ले जो कम्प्लीटली डीसी कंपोनेंट को अलाउ करेगा और जो रिपल्स होगी उनको रिमूव करेगा, बल्कि हमारे पास आउटपुट पे जो पेवर डीसी कंपोनेंट है वोल्टेज का या इवन करंट का, उसके साथ हमारे पास कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स जो स्विचिंग की वजह से जनरेट होंगी वो भी हमारे पास आउटपुट पे अपेयर होगी। Hence in practice the output voltage waveform will appear as shown in this figure। इस फिगर में x एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है, जबकि y एक्सिस पे हमने आउटपुट वोल्टेज को प्लॉट किया है। इस आउटपुट वोल्टेज को हमने डिनोट किया है v नॉट ऑफ t से। इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और ये हमारे पास इस आउटपुट वोल्टेज के लिए एक्चुअल वेवफॉर्म है, जो कि एक फिक्स वैल्यू नहीं है बल्कि इसके दो कंपोनेंट्स है। एक है इसका पेवर डीसी कंपोनेंट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल वी नॉट से, और कुछ इसमें रिपल्स है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वी रिपल से। और अगर इस वी नॉट और वी रिपल्स को हम ऐड कर ले, this will be equals to the total output voltage। So the actual output voltage consists of the desired DC component V naught plus a small undesired AC component V ripple arising from the incomplete attenuation of the switching harmonics by the low pass filter, that is V naught of t equals to capital V naught plus V ripple। इस रिलेशन में दिस इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज। ये जो कैपिटल वी नॉट है दिस इज द डिजायर्ड डीसी कंपोनेंट और द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वी नॉट, और ये जो वी रिपल है ये हमारे पास अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट है। सो इट इज़ a good approximation to assume that the magnitude of the switching ripple voltage, ये जो हमारे पास जो रिपल वोल्टेज है इसका हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट दिस इज वेरी वेरी लेस देन द डीसी कंपोनेंट। Therefore the output voltage is well approximated by its DC component V naught, with the small ripple term V ripple is neglected।
ठीक है, इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो रिपल वोल्टेज है इसकी मैग्नीट्यूड को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल रिपल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये है कि जो रिपल्स है इसके मैग्नीट्यूड बहुत कम है, चाहे अगर हम वोल्टेज की बात करें या इवन करंट की बात कर ले। तो अगर इस टर्म को हम निगलेक्ट कर ले तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वी नॉट ऑफ टी, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू दी कैपिटल वी नॉट, यानी the DC component of E naught. This approximation is known as the small ripple approximation, which greatly simplifies the analysis of the converters. Inductor volt second balance. The expression for the output voltage in case of the buck converter, that is V naught equals to dVn, was derived using some simple arguments based on the Fourier analysis. अब हमें ये पता है कि अगर कोई वेवफॉर्म गिवन हो तो फोरियर सीरीज से हम उसकी डीसी कंपोनेंट को डिराइव या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बक कन्वर्टर के केस में जो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज थी उस वोल्टेज के लिए जो हमने डीसी कंपोनेंट डिराइव किया तो हमने ये फार्मूला यूज किया था, वी नॉट डी सी दिस वॉज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल ऑफ स्मॉल वी नॉट टी डी टी वेयर द लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू टी। ये फार्मूला यूज करके हमने ये जो एक्सप्रेशन था ये डिराइव किया था। हाउएवर ये जो हमारे पास ये जो एनालिसिस है ये हम बाकी कन्वर्टर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। मसलन बक कन्वर्टर के अलावा बूस्ट कन्वर्टर है, बक बूस्ट कन्वर्टर है, या कोई भी दूसरे कन्वर्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। So our objective is the development of a more general method for analyzing any switching DC to DC converters, which consist of a network of inductors, capacitors, and switches. इन जनरल मेथड जो हम डेवलप करेंगे उन मेथड्स में से एक मेथड हमारे पास इंडक्टर वोल्ट सेकंड बैलेंस है। Inductor volt second balance is one of such methods which allows us to derive an expression for the DC component of the converter's output voltage. अब नॉर्मली इंडक्टर के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जो डिफाइनिंग रिलेशन है, दिस इज वी एल equals to L di by dt. VL, this is the inductor voltage, DIL is the current through inductor, L is the value of the inductance. यहाँ से हम लिख सकते हैं DIL, this will be equals to VL dt divided by L. अब अगर इस रिलेशन को हम एक टाइम पीरियड के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर ले, so the inductor current IL, this will be equals to 1 divided by L integral of VL dt, where the limits will be from 0 to t. यहाँ से हम लिख सकते हैं this will be equals to IL of t minus IL of 0, this will be equals to this one. अब ये जो IL of t है, this is the final value of the inductor current, and IL of 0, this is the initial value of the inductor current. अगर बक कन्वर्टर के केस में जो इंडक्टर करंट के वेवफॉर्म्स है वो हमने इस डायग्राम में प्लॉट किए हैं। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास इंडक्टर करंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई एल से। अब इस डायग्राम में आई एल ऑफ ज़ीरो, दिस इज़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट। किसी इनिशियल वैल्यू से इंडक्टर करंट की वैल्यू स्टार्ट होगी, फिर फ्रॉम 0 टू टी ऑन इस इंडक्टर की करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड फ्रॉम टी ऑन अप टू दिस टाइम कैपिटल जो टाइम पीरियड है टी तक, इसकी वैल्यू फिर हमारे पास डिक्रीज होगी। दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट जो कि हमने आई एल ऑफ टी से रिप्रेजेंट की है। अब इस वेवफॉर्म को अगर हम देखेंगे तो इंडक्टर करंट की जो इनिशियल वैल्यू है आई एल ऑफ ज़ीरो और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है आई एल ऑफ टी, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल है। अब ये जो वेवफॉर्म्स है ये हमने किस तरह प्लॉट की हैं,
अगले लेक्चर में जब हम बक कन्वर्टर पढ़ेंगे तो उस लेक्चर में आप लोग सीख जाएंगे कि इंडक्टर करंट की जो वेवफॉर्म्स है उन वेवफॉर्म्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे हमारे पास इंडक्टर करंट के वेवफॉर्म्स गिवन थे। उन वेवफॉर्म्स में हमारे पास आई एल ऑफ टी, दिस was the final value of the inductor current. IL of 0, this was the initial value of the inductor current. चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल थी तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे देयर डिफरेंस विल बी 0। अब इस रिलेशन में हम आई एल ऑफ टी माइनस आई एल ऑफ 0 की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। फिर अगर इस रिलेशन को हम एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रिलेशन आएगा वो ये आएगा। Therefore, in steady state, the integral of the inductor voltage must be 0 according to this relation. अब इस रिलेशन की अगर राइट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे, VL मीन्स इंडक्टर वोल्टेज और वोल्टेज का यूनिट हमारे पास वोल्ट है। DT मीन्स द चेंज इन टाइम, टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है। तो द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हैज द यूनिट्स ऑफ वोल्ट सेकंड्स। इस रिलेशन को अगर हम टी से डिवाइड कर ले तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा वो ये आएगा। फिर इस रिलेशन को हम मज़ीद दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक केस में हम लिमिट्स लेंगे फ्रॉम 0 टू dt और सेकंड केस में हम लिमिट्स लेंगे फ्रॉम dt टू t। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का या इस रिलेशन का, इंटीग्रल ऑफ VL dt divided by t, where the limits are from 0 to t. This is representing the average value of the inductor voltage, or it is the DC component of the inductor voltage. This is equal to 0. अब इंडक्टर वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है या डीसी कंपोनेंट है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडक्टर voltage. According to this relation, the average value of the inductor voltage, this will be equal to 0. Therefore, the average inductor voltage is 0 in steady state, or the inductor voltage must have 0 DC component for one switching period. This principle is called the inductor volt second balance. अब ये जो सिंबल है प्रीवियसली हमने ये पढ़ा था कि this means the average value of the inductor voltage. This was equals to integral of VL dt divided by capital T, where the limits are from 0 to t. T is the switching time period. VL means this is the instantaneous value of the inductor voltage. अब किसी भी कन्वर्टर के केस में इंडक्टर वोल्टेज के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन बनेंगे। एक एक्सप्रेशन को हम मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VL ऑन से और दूसरे को जो इंडक्टर वोल्टेज है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VL ऑफ से। VL ऑन मीन्स द इंडक्टर वोल्टेज विल द स्विच इज ऑन। तो जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट में हम KVL लगाकर इस VL ऑन के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट में KVL लगाकर VL ऑफ के लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब जितनी ड्यूरेशन के लिए स्विच ऑन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T ऑन से और जितनी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास स्विच ऑफ होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T ऑफ से। अब इस रिलेशन में अगर इस इंटीग्रेशन को हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हम VL ऑन मल्टीप्लाइड बाई T ऑन इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। चूँकि T ऑन हमारे पास dt की इक्वल है तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ VL ऑन इंटू dt। इसी तरह इस इंटीग्रल को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, दिस विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ VL ऑफ एंड T ऑफ। और इसी तरह चूँकि T ऑफ हमारे पास डी डैश टी की इक्वल है
तो वी एल ऑफ मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ, दिस इज इक्वल टू वी एल ऑफ इंटू डी डैश टी विच इज इक्वल्स टू वी एल ऑफ इंटू वन माइनस डी टी। तो इस रिलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सेगमेंट के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन के बजाय सिंपल वी एल ऑन इंटू टी ऑन, और इसके लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी एल ऑफ इंटू टी ऑफ। वी एल ऑन हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन होगा जो कि हम किसी भी कन्वर्टर के लिए लिखेंगे के वी एल लगाकर जब स्विच ऑन होगा, और वी एल ऑफ हम किसी भी कन्वर्टर के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं केवीएल से जब स्विच हमारे पास ऑफ होगा। तो जो वोल्ट सेकंड बैलेंस है इंडक्टर का, उसको हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडक्टर वोल्टेज दिस इज इक्वल्स टू, इस टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ वी एल ऑन इंटू टी ऑन, और इस टर्म की जगह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी एल ऑफ इंटू टी ऑफ, दिस इज इक्वल टू 0। Next is the capacitor charge balance, which is also called ampere second balance। अब जिस तरह इंडक्टर वोल्ट सेकंड बैलेंस का मेथड हमने पढ़ा, वो प्रिंसिपल पढ़ा, उस प्रिंसिपल को हम किसी भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का पर्पस क्या होगा कि हम उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन हम डिराइव कर लें। इसी तरह जो कैपेसिटर चार्ज बैलेंस है, this can be used to find steady state currents in any switching DC to DC converter। अब कैपेसिटर के लिए जो डिफाइनिंग रिलेशन है IC equals to C dVC by dt। VC means the capacitor voltage, C is the capacitance of the capacitor, and IC is the capacitor current। अब इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ dVC this will be equals to dic divided by C dt। अब अगर इस रिलेशन को मैं एक टाइम पीरियड के लिए अगर इंटीग्रेट कर लूँ तो दिस विल बिकम VC will be equals to 1 by C integral of IC dt where the limits will be from 0 to t। अब इसको अगर मैं एक पीरियड के लिए लिखना चाहूँ VC को, तो दिस विल बी इक्वल्स टू VC ऑफ t माइनस VC ऑफ 0। VC of t is the final value of the capacitor voltage, and VC of 0 this is the initial value of the capacitor voltage। Under steady state condition, एक स्विचिंग पीरियड के लिए कैपेसिटर वोल्टेज की फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू हमारे पास दोनों सेम होंगी। इस वजह से मैं लिख सकता हूँ VC of t minus VC of 0, their difference will be equals to 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास बन जाएगा 0 will be equals to 1 by C इंटीग्रल ऑफ IC dt। और फिर अगर इस रिलेशन को अगर मैं C से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 0 will be equals to इंटीग्रल ऑफ IC dt where the limits are from 0 to t। Therefore, according to this relation, in steady state the integral of the capacitor current must be 0। अब इस रिलेशन या इस एक्सप्रेशन के अगर राइट हैंड साइड को हम ऑब्जर्व करेंगे तो IC मीन्स दिस इज द करंट थ्रू कैपेसिटर, और करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर है। DT मीन्स दिस इज द चेंज इन टाइम, तो टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है। सो द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव दिस इक्वेशन हैज द यूनिट्स ऑफ एम्पेयर सेकंड्स और द यूनिट ऑफ चार्ज। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं t से डिवाइड कर लूँ तो एक इक्विवेलेंट फॉर्म ये बनेगा 1 by t इंटीग्रल ऑफ IC dt where the limits are from 0 to t। फिर इस एक्सप्रेशन को हम मज़ीद दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक केस में हमारे पास लिमिट्स होंगे फ्रॉम 0 टू dt, और सेकंड केस में हमारे पास लिमिट्स होंगी
फ्रॉम dt टू t। अब दो पार्ट्स में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल स्विच के हमारे पास दो स्टेट्स है। कंट्रोल स्विच या ऑन होगा और या कंट्रोल स्विच हमारे पास ऑफ होगा। तो ये जो पार्ट है, दिस इज द कैपेसिटर करंट व्हेन द कंट्रोल स्विच विल बी ऑन, और ये जो सेकंड पार्ट है, दिस इज द कैपेसिटर करंट व्हेन द कंट्रोल स्विच विल बी ऑफ। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डीसी वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर करंट और द एवरेज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर करंट। तो कैपेसिटर के डीसी कंपोनेंट या एवरेज वैल्यू को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दिस DC component of the capacitor current or the average value of the capacitor current, this will be equals to integral of IC dt divided by t, where the limits are from 0 to t. This will be equals to 0. Therefore, the average capacitor current is 0 in steady state, or the capacitor current must have 0 DC component. This principle is called the capacitor charge balance. Previous slide पे the average value of the capacitor current, this was equals to 1 by t integral of IC dt, where the limits are from 0 to t, this was equals to 0. अब ये जो पोर्शन है, इस इंटीग्रेशन को मैं मज़ीद दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। एक केस में हमारे पास लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0 टू dt, और सेकंड जो हमारे पास टर्म आएगा उस केस में लिमिट्स होंगे फ्रॉम dt टू t। अब इस इंटीग्रेशन के इस टर्म को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आई सी ऑन इंटू टी ऑन। आई सी ऑन इज द कैपेसिटर करंट व्हेन द स्विच इज ऑन मल्टीप्लाइड बाय टी ऑन। अब आई सी ऑन को हम सर्किट से उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। स्विच जब ऑन होगा तो जिस नोड के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उस नोड पे हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, और आई सी ऑन के लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी तरह स्विच जब ऑफ होगा तो जिस नोड के साथ हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया होगा उसी नोड पे हम केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम कैपेसिटर करंट के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई सी ऑफ से। अब जितनी ड्यूरेशन के लिए स्विच ऑफ होगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी ऑफ से। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इस टर्म को सिंपली मैं लिख सकता हूँ आई सी ऑन मल्टीप्लाइड बाई टी ऑन। अब चूँकि टी ऑन हमारे पास डी टी की इक्वल है, तो आई सी ऑन इंटू टी ऑन, दिस विल बी इक्वल्स टू आई सी ऑन इंटू डी टी। सिमिलरली आई सी ऑफ इंटू टी ऑफ, this will be equals to IC off into d dash t, which is further equal to IC off into 1 minus dt। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ the average value of the capacitor current, this is equals to, इस सेगमेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ IC on मल्टीप्लाइड बाई T on। इस पार्ट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ IC ऑफ मल्टीप्लाइड बाई T ऑफ, जबकि आई सी ऑन हमारे पास कैपेसिटर करंट है जब स्विच ऑन होगा। तो ये एक्सप्रेशन हम सर्किट से लिख सकते हैं। सिमिलरली आई सी ऑफ हमारे पास कैपेसिटर करंट का रिलेशन या एक्सप्रेशन होगा, और इसको हम सर्किट से लिख सकते हैं जब स्विच हमारे पास ऑफ होगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द कैपेसिटर चार्ज बैलेंस in the most simplest form.